حج کے بعد کوفے کے عزم سے نکلے تو مکے کے قریب ہی مولا حسین کا قافلہ نظر آیا. چند منزلوں تک ہمارا اور مولا حسین کا راستہ ایک ہی تھا. زہیر کو پسند نہ تھا کہ مولا حسین کے قافلے کے ساتھ سفر کرے. ہم رک گئے تاکہ مولا حسین ایک منزل آگے نکل جائیں. جب مولا حسین چلے جاتے تھے ہم رک جاتے تھے، اور جب مولا حسین رکتے تھے ہم آگے بڑھ جاتے تھے. تقدیر نے ایک منزل میں دونوں قافلوں کو ملا دیا. مولا حسین نے قاصد بھیجا اور زہیر کو اپنے حضور طلب فرمایا. دنیا کا کام بڑا نرالا ہے، جس چیز سے منہ موڑو وہ تمہاری وبال ہو جاتا ہے. مجھے پتا تھا اگر مولا حسین سمجھ لیں کہ یہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے تو مجھ سے دستبردار نہ ہوں گے. کیا آسمان ٹوٹ گیا، شکل قمر ہو گیا ہے، یا سورج کو موت آ گئی؟ شاید کوئی واجب کام ہوگا جبھی قاصد کو بھجوایا ہے. واجب کام؟ ان کا واجب یہ ہوگا کہ ان کی دعوت کو قبول کروں اور ان کے ساتھ کوفہ جاؤں. اگر بلاتے ہیں تو قبول مت کرنا، معذرت کر لینا. کہہ 2000 طرح کے مشغلے ہیں تمہارا مال لاوارث ہے اور تجارت ٹھنڈی ہے. میں ان کے ساتھ کوفے نہیں جا سکتی. نہیں دلہن، نہ جانا بہتر ہے بنسبت یہ کہ میں مال و تجارت کا بہانہ کروں. میری جگہ جا نماز پر ہی ٹھیک ہے. تجارت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. خود کو عمر کے اس حصے میں اس جھگڑے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے. زہیر، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. خدا کی قسم نہ جا کر تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. دلہن، میں اسی دن سے اپنی تلوار کو الوداع کہہ چکا ہوں جس دن امت رسول میں فتنہ شروع ہوا. قسم کھائی ہے کہ جب تک مسلمان کے سامنے کھڑا ہے میری تلوار نیام میں ہی رہے گی. میں اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتا. مولا حسین کے ساتھ ہو جانا یعنی اس جنگ میں کود جانا جس کا خدا ہی جانتا ہے کیسا برا انجام ہے. تم ایک ہی بات کو لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہو زہیر؟ کس نے کہا اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دو؟ کس نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ کوفے چلے جاؤ؟ یہ بے ادبی کے فرزند رسول کے بلاوے کو ٹھکرا دو اور ان کی بات سننا تک گوارا نہ کرو. کہیں ڈر تو نہیں گئے ہو؟ کس چیز سے ڈروں گا؟ مجھے کیا پتا. یہ سارے بہانے ڈر کی نشانی ہیں. تمہیں مولا حسین کا تم سے جان مانگنے کا ڈر ہے یا مال مانگنے کا خوف؟ اپنی عزت کی فکر کرو زہیر. جب لوگ سنیں گے کہ مولا حسین نے زہیر کو بلایا تھا اور زہیر نہیں گیا تو لوگ تمہیں کمزور دل اور ڈرپوک کہیں گے. کل سے تمام زبانوں اور محفلوں کا ورد بن جاؤ گے تم. آج کے بعد اگر کسی ڈرپوک کی مثال دینا چاہیں گے تو چوہے کی جگہ زہیر ابن قین کی مثال دیں گے. دلہن میں جانے کے لیے آیا ہوں. اس تلخی کے ساتھ جانا اور اس مٹھاس کے ساتھ آنا کیا ہوا زہیر؟ مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں گا. تو پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا؟ تمہاری تجارت ٹھنڈی رہ جائے گی. سب کچھ تمہارا دلہن. میری ساری دنیا تم ہو. میرے پاس مال دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں بخش رہا ہوں. تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. طلاق دے دو گے مجھے؟ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بات کریں. مجھے خبر ملی ہے کہ ابن زیاد مولا حسین کے قتل پر مامور ہے اور اس کے بدلے میں بہت کچھ پائے گا. کوفیوں کے کئی انسان نما بھیڑیوں کے ریوڑ خرید لیے گئے ہیں حسین سے مقابلے کے لیے.
मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज ना मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फिल मिली है दुल्हन। खुदा की कसम, अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी हैं ज़ुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन, जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसुकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतिमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली। जो भी रुके वो ये जान ले के कल मारा जाएगा। बाज़ा साहब ने इजहार वफादारी किया। ज़ुहैर ने भी खुश आवाज बुलबुल की तरह आवाज उठाई। जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से ना शर्माए। ओ ज़िल्फ जोशन के बेटे, मैंने सुना है फर्जंदे रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बात शाहत की आरजू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। वाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मेंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं ज़ुहैर इब्ने कैने बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं।
तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचती हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्न कैम, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे इख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हों, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जानें? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश! सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम। इब्ने जुल्जोशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं।
मेरे मौला हुसैन ने कसद नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्न कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, कीन का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। कीन का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्न अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
ढेर लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरह था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यास के हालत मैदान की तरफ गया।